Assalamu alaikum dear students. Welcome to the Savory Institute of Medical Sciences, Rawalpindi. In today's lecture, we will discuss the arteries of upper limb, the list of arteries located in the upper region. So as usual, before going towards the lecture, we will discuss diagrammatic view of the lecture. Here you are seeing in this diagram, first of all we will discuss the skeleton of the upper limb. This is clavicle bone, this one is scapula, this one is humerus, then this one is radius, and then ulna. And if you come on the thorax region, here is sternum, which is the breastbone, and right beside of the sternum there are ribs. So these are the bones located in the upper region and thorax region. So now we will discuss the arteries located in the upper limb. First of all, if you see here, this one is called right subclavian artery. Just going above the scapula and beneath the clavicle, this artery is called right subclavian artery. The second one is axillary artery. This located in the axillary region, in the armpit region. Just you are seeing here this. So axilla is the region of armpit, and we can also call this axillary region. So the artery passing from here, axillary region, is called axillary artery. And you are seeing here on humerus, there is a circle of small artery round the head of humerus. This is called humeral circumflex. Humeral circumflex artery is just rounding about the upper part of the humerus bone. Then you are seeing here on this side, this is the deep brachial artery that is located just in the depth of brachial region. So this is called deep brachial artery. And if it comes downward from this region, so in this region, this artery we call brachial artery. So in the depth region, we will call this deep brachial artery, and in the just on the upper side of the depth is called brachial artery. And then the collateral region of the artery is called ulnar collateral artery. Now we will come to the forearm region. In the forearm region, there are two bones. One is on the thumb side, that is called radius, and the other one is called ulna. So the artery passing nearby the radius bone is called radial artery, and the artery passes nearby the ulna bone is called ulnar artery. So we discussed here two arteries. One is located nearby just beside of radius bone, so this is called radial artery, and that is beside of ulnar bone is called ulnar artery. Now we are looking at the just middle side of the arm. In the middle side of the radial and ulnar artery, there is another artery that is called anterior interosseous. This artery is called anterior interosseous. After discussing the forearm region, we will come on to the hand region. Hand region also contains three major arteries. The first one is called deep palmar arch. The deep palmar arch
located inside the depth of palm. This is called deep palmar artery. And the superficial palmar artery just located on the surface of the palm. These you can feel these if we dissect this region. So this is the superficial arteries. And the third one is called digital artery. Digital arteries are located just on the front of your fingers, on the tip of your fingers. That's why we call these one digital arteries. So again we will discuss list of these arteries. You are saying, first of all we have discussed right subclavian artery. Right subclavian artery is just located beneath the clavicle and above the scapula. So this is right subclavian artery. On number 2 we have discussed axillary artery. Axillary artery is just located in the region of axilla. Axilla is the region of armpit. That's why we can also call it axillary region. So the artery passing through the axilla is called axillary artery. Third one we have discussed, that is humeral circumflex artery. Humeral, here you are seeing humeral circumflex artery is just rounding about the humerus bone. So we call this humerus circumflex artery. Then at 4th we have discussed deep brachial artery and brachial artery. So the artery located in the depth region is called deep brachial artery, and just above is called brachial artery. Then we have discussed ulnar collateral artery. You are seeing here collateral region of the ulnar artery. So this is called ulnar collateral artery. Then we come to the forearm region, the region from here to this one. This is called forearm region. We have discussed in forearm region 3 arteries. The first one is called radial artery, and the second one is called ulnar artery, and third one is called anterior interosseous artery. So the artery located beside the radial bone is called radial artery, and the artery located beside the ulnar bone is called ulnar artery, and the artery located in the middle region of the forearm is called anterior interosseous artery. After discussing this, we will come to the hand portion. On hand portion, we will discuss 3 arteries: deep palmar arch, superficial palmar arch, and digital artery. So the deep palmar arch, if we discuss deep palmar arch, in deep palmar arch the arteries are located in the depth of palm, while in superficial palmar arch the arteries are located. अब हम डिस्कस करते हैं आर्टरीज को, जो लिस्ट ऑफ आर्टरीज इन अपर लिम्ब। ये वो आर्टरीज हैं जो हमारे बाजू के अंदर पाई जाती हैं, आर्म के अंदर पाई जाती हैं। अगर हम इसको डिटेल में करने से पहले थोड़ा सा डायग्राम के व्यू कर लेते हैं। डायग्राम में आपको ये चीजें शो हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल बोन्स के हवाले से अगर देखा जाए तो ये जो आपको बोन शो हो रही है, ये थोरैक्स रीजन में बोन है, जिसको स्टर्नम हम कहते हैं, और ब्रेस्ट बोन भी इसको कह सकते हैं। स्टर्नम के साथ ये जो जा रही है ये रिब्स हैं। रिब्स के डिस्कस करने के बाद ये जो ऊपर आपको नजर आ रही है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बोन, दिस इज कॉल्ड क्लेविकल, इसको हम क्लेविकल कहते हैं। और फिर ये 3 कोने वाली जो हड्डी आपको नजर आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे, स्कैपुला कहेंगे। और फिर यहां से ये जो बोन आपको नजर आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमरस बोलेंगे। और फिर 2 बोन्स यहाँ पे अंगूठे की साइड पे जो है, इसको आप क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। और इस तरफ जो बोन आएगी, इसको हम क्या कहेंगे, अल्ना कहेंगे। तो ये तो बेसिकली बोन का स्ट्रक्चर था जो मैंने डिस्कस किया। अब हम आर्टरीज के स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं कि कौन सी आर्टरी कहां से निकल रही है। अब अगर गौर से देखें, सबसे पहली आर्टरी जिसको हम क्या कहते हैं, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो है सबक्लेवियन रीजन में होती है।
ये वो रीजन होता है जहां पे इधर से आपको क्या शो हो रहा है, ये क्लेविकल है और नीचे क्या है, स्कैपुला है। तो क्लेविकल और स्कैपुला के साथ जो रीजन है इसको हम क्या कहेंगे, यहां से जो आर्टरी आएगी इसको क्या कहेंगे, राइट सबक्लेवियन आर्टरी आप कहेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आ जाती है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी कहां से पास कर रही है, एक्सिला के रीजन से। एक्सिला का रीजन कौन सा है, जो आर्मपिट रीजन में होता है, जो बगल का एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिला। और उस एरिया को हम क्या कहेंगे, एक्सिलरी रीजन। और वहां से जो आर्टरी पास कर रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्सिलरी आर्टरी कहेंगे आपसे। गुड। उसके बाद आपको ये ह्यूमरस बोन का हेड नजर आ रहा है और इसके इर्द गिर्द आप देखें तो ये आर्टरी जो है ऐसे सर्कल बनाया हुआ है इस आर्टरी ने। दैट्स व्हाई ह्यूमरस की वजह से इसको क्या कहेंगे, ह्यूमरल सर्सिमफ्लेक्स। सर्सिमफ्लेक्स इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसने सर्कल बनाया हुआ है ह्यूमरस आर्टरी, ह्यूमरस बोन के इर्द गिर्द। दैट्स व्हाई दिस आर्टरी इज कॉल्ड ह्यूमरल सर्सिमफ्लेक्स आर्टरी। क्लियर। अब उसके बाद ये एक डीप वाला रीजन है और एक थोड़ा सा अपर वाला रीजन है। जो डेप्थ वाला रीजन है उसके पास जो आर्टरी आएगी उसको हम क्या कहेंगे, ब्रैकियल, डीप ब्रैकियल कहेंगे। ये जो रीजन होगा ये क्या कहलाएगा, ब्रैकियल रीजन कहलाएगा। यहाँ से ब्रैकियल प्लेक्सेस वगैरह पास होती है, जो नर्व्स होती हैं। तो अब इसमें यहाँ पे डेप्थ में जो होगी इसको हम क्या कहेंगे, डीप ब्रैकियल आर्टरी कहेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ से ऊपर की तरफ जब आर्टरी आएगी तो इसको क्या कहेंगे, ब्रैकियल आर्टरी कहेंगे आप। ब्रैकियल आर्टरी के बाद फिर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये कोलैटरल है, एक दूसरे के ऐसे ऑपोजिट साइड पे आई हुई है, तो इसको हम कहेंगे अल्नर कोलैटरल आर्टरी। अल्नर कोलैटरल आर्टरी इसलिए कहेंगे कि ये नीचे आगे अल्ना हड्डी की तरफ आ रही है, तो दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहेंगे, अल्नर कोलैटरल आर्टरी इसको हम कहेंगे। अब ये डिस्कस करने के बाद हम आ जाते हैं यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, फोर आर्म रीजन कहते हैं। और इसमें अगर देखें तो हमारे पास जो दो बोन्स हैं कौन कौन सी हैं, पहले नंबर पे जो थंब की साइड पे होगी तो वो क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी हड्डी। और जो इस तरफ बोन होगी वो क्या कहलाएगी, अल्ना कहलाएगी। तो अब जो आर्टरी जो है ना जिस बोन के साथ आएगी उसका हम नाम उसके साथ लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब मैंने आपको बताया कि जो थंब की साइड पे बोन आ रही है वो कौन सी आ रही है, रेडियस बोन आ रही है। अब रेडियस के साथ साथ जो आर्टरी जाएगी ये इसके ऊपर से जाएगी, इसको हम क्या कहेंगे, रेडियल आर्टरी कहेंगे। फिर इस साइड पे कौन सी बोन है, अल्ना है। और अल्ना के साथ साथ से जो आर्टरी आएगी उसको हम क्या कहेंगे, अल्नर आर्टरी कहेंगे। फिर उसके बाद दरमियान वाला जो रीजन है अल्ना और रेडियस की बिल्कुल मिड में, इस रीजन में जो आर्टरी आएगी इसको हम क्या कहेंगे, एंटीरियर इंटेरोसोसिस आर्टरी। क्या कहेंगे, इंटीरियर इंटेरोसोसिस आर्टरी कहेंगे इसको। तो फोर आर्म रीजन डिस्कस करने के बाद हम किस पे आ जाते हैं, हैंड पे आ जाते हैं। हैंड के हवाले से देखें तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी आती है, डीप पामर आर्च। ये पामर आर्च आपका ये जो रीजन होता है पाम का जो हथेली का एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, पामर आर्च कहते हैं। अब इसमें दो किस्म की आर्टरीज होती हैं, एक जो होती है वो सरफेस के ऊपर पाई जाती है और जो सेकंड वन होती है वो क्या है, डेप्थ के अंदर पाई जाती है। अब जो सरफेस के ऊपर पाई जाएंगी उनको हम क्या कहेंगे, सुपरफिशियल पामर आर्च। क्या कहेंगे, सुपरफिशियल पामर आर्च। और जो डेप्थ में होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, डीप पामर आर्च, क्योंकि वो डेप्थ में पाई जाती है। और इसी तरह तीसरे नंबर पे जो आर्टरीज जो फिंगर्स की जस्ट ये डिजिट्स इसलिए कहते हैं, ये डिजिटल काउंट हम करते हैं 1 2 3 4 5, तो दैट्स व्हाई ये डिजिट्स के अंदर जो पाई जाती है उसको हम क्या कहेंगे, डिजिटल आर्टरी कहेंगे। अब अगर इसको लिस्ट को हम देखें तो लिस्ट में आपको सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, सबक्लेवियन, राइट सबक्लेवियन आर्टरी आ रही है। सेकंड नंबर पे एक्सिलरी आर्टरी आ रही है। थर्ड नंबर पे ह्यूमरल सिम्प्लेक्स आर्टरी आ रही है। फोर्थ पे डीप ब्रैकियल आर्टरी आ रही है। फिफ्थ पे ब्रैकियल आर्टरी आ रही है। सिक्स पे अल्नर कोलैटरल आर्टरी आ रही है। और सेवन पे रेडियल आर्टरी आ रही है। एट पे एंटीरियर इंटेरोसोसिस आर्टरी आ रही है। नाइन्थ पे डीप पामर आर्च है और 10th पे सुपरफिशियल पामर आर्च है और 11th पे क्या है, डिजिटल आर्टरी।
एक दफा फिर इसको मैं समराइज करेंगे हम इसको वन बाय वन करके। नंबर 1 पे क्या है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। राइट सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ पे लोकेटेड है जी, ये रीजन है, ये क्लेविकल और स्कैपुला के पास से होती आ रही है, तो ये जो रीजन होगा इसको हम क्या कहेंगे, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। इस आर्टरी को हम क्या कहेंगे, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। फिर सेकंड नंबर पे अगर आप देखें तो कौन सी है, एक्सिलरी आर्टरी है। एक्सिलरी आर्टरी किस एरिया में है, जो एक्सिला के करीब, जो आर्मपिट का रीजन होता है उसके करीब से जब आर्टरी गुजरेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सिलरी आर्टरी इसको हम कहेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप आ जाए तो कौन सी है, ह्यूमेरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ह्यूमरस सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमरस के हेड के ऊपर से राउंड शेप में होके आती है, गोल में, तो दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कहेंगे। फिर उसके बाद दो आर्टरीज हम और डिस्कस करेंगे, एक है डीप ब्रैकियल आर्टरी और दूसरी है ब्रैकियल आर्टरी। अब ये जो रीजन है इसको हम क्या कहेंगे, ब्रैकियल रीजन कहेंगे। यहाँ से ब्रैकियल प्लेक्सस वगैरह जो है ना वो अराइज होती है। और अब जो डेप्थ वाला रीजन है वो उसको हम क्या कहेंगे, डीप ब्रैकियल आर्टरी। जो आर्टरी डेप्थ रीजन से आएगी उसको क्या कहेंगे, डीप ब्रैकियल आर्टरी, और जो थोड़ा सा डेप्थ से ऊपर होगी उसको हम क्या कहेंगे, ब्रैकियल आर्टरी कहेंगे। ब्रैकियल आर्टरी और डीप ब्रैकियल आर्टरी के बाद हम आ जाते हैं अल्नर कोलैटरल आर्टरी। ये जस्ट बिसाइड ऑफ अल्ना है और ये कोलैटरल रीजन है इसका, दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहेंगे, अल्नर कोलैटरल आर्टरी कहेंगे। अब उसके बाद अगर हम आ जाए तो कौन सी आ जाती है आर्टरी, रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी किस तरफ है जी, ये जो बोन आपको नजर आ रही है ये रेडियस बोन है और इसके ऊपर से ये जो आर्टरी आ रही है इसको हम क्या कहेंगे, रेडियल आर्टरी कहेंगे। रेडियल आर्टरी के बाद फिर आती है एंटीरियर इंटेरोस्टियोसिस आर्टरी। एंटीरियर इंटेरोस्टियोसिस आर्टरी आप देख रहे हैं कि इस तरफ रेडियस है और इस तरफ अल्ना है, इन दोनों के बीच में से जो आ रही है इसको क्या कहेंगे, एंटीरियर इंटेरोस्टियोसिस आर्टरी कहेंगे। उसके बाद हमारे पास अगर देखा जाए तो अल्नर पीछे बच जाती है। अल्नर आर्टरी किस तरफ है, अल्ना हड्डी के साथ साथ आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे, अल्नर आर्टरी कहेंगे। और लास्ट में जो हमारे पास एरिया बच जाता है वो हैंड का बच जाता है, हाथ का एरिया बच जाता है। और हैंड के ऊपर अगर देखें तो सबसे पहले क्या है, डीप पामर आर्च है, सेकंड पे क्या है, सुपरफिशियल पामर आर्च है, और थर्ड पे क्या है, डिजिटल आर्टरीज है। तो जो हमारी हथेली है, ये पाम है, इसमें अगर सरफेस के ऊपर जो आर्टरीज है उनको हम क्या कहेंगे, सुपरफिशियल पामर आर्च, और जो डेप्थ में इसके अंदर गहराई में पाए जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, डीप पामर आर्च उसको कहेंगे। और जो हमारे डिजिट्स के अंदर, फिंगर्स के अंदर डिजिट्स की तरफ पाई जाती है उसको हम क्या कहेंगे, डिजिटल आर्टरी कहेंगे। सो हमने ये सारी डिस्कस की। इसको मजीद उसमें करने के लिए अगर आप इजी इसको और अगर मैं कर दूं, ये तो आ गया आपका राइट सबक्लेवियन का, यानी कि ये आप ये समझ लें कि जो आपका एरिया है स्कैपुला और क्लेविकल का, इस रीजन में राइट सबक्लेवियन आर्टरी आ जाती है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आपका आर्मपिट रीजन है, एक्सिलरी रीजन है, उसके पास से जो आर्टरी जब गुजरेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सिलरी आर्टरी कहेंगे। और फिर ह्यूमरस के हेड के पास जो आर्टरी आएगी उसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कहेंगे। फिर यहाँ पे ये जो रीजन आ जाता है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रैकियल रीजन कहते हैं। ब्रैकियल प्लेक्सस यहाँ से पास होती है, तो इसमें अगर दो होगी, जो डेप्थ में होगी उसको हम डीप ब्रैकियल कहेंगे, और जो डेप्थ से थोड़ा सा ऊपर आएगी उसको हम क्या कहेंगे, ब्रैकियल कहेंगे। फिर उसके बाद आप इसको डिवाइड कर दें फोर आर्म में। फोर आर्म में अगर देखें तो आपके पास तीन और आर्टरीज आ जाती हैं। जो रेडियस हड्डी की तरफ है उसको हम क्या कहेंगे, रेडियल आर्टरी कहेंगे, और जो अल्ना हड्डी की तरफ है उसको हम क्या कहेंगे, अल्नर आर्टरी कहेंगे, और जो मिड में होगी उसको क्या कहेंगे, एंटीरियर इंटरस्टियोसिस आर्टरी उसको कहेंगे। फिर उसके बाद लास्ट जो रीजन है वो हैंड का है, उसमें आप हैंड में अगर देखें तो तीन आर्टरीज मजीद आ जाती हैं। जो डेप्थ में पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, डीप पामर आर्च, और जो सरफेस के ऊपर पाई जाएंगी उसको हम क्या कहेंगे, सुपरफिशियल पामर आर्च, और जो डिजिट्स के अंदर पाई जाएंगी, फिंगर्स के अंदर पाई जाएंगी उसको हम क्या कहेंगे, डिजिटल आर्टरी कहेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।